We have learnt about programming constructs. So there are 3 programming constructs. We have also learned that what is a program. So sequence of instructions is called program, and there are 3 programming constructs: sequential, selection, and repetition. Sequential programs are called are the programs which follows input, process, and output sequence. Okay, so we have given some examples like this sum of 2 numbers, and I have taken some more examples to check whether these are of sequential construct or not. So these are some more examples. Then we have talked about selection construct. In selection construct, we have to take decisions, we have to execute statement based on a certain condition. So if the condition is correct, then only statement executes, and if the condition is not correct, in that case statement does not execute. So like in sequential construct, it is compulsory that every instruction that you have written will execute, whereas in selection construct it depends upon the previous statement whether the next statement will execute or not. Okay, here also every statement execute once only, maximum one. Okay, either it will execute or it will not execute. If it executes, it will execute only once. Okay, so this thing we have learnt in our previous classes, and I have given you few examples in which we have checked that whether a person can vote or not. So these were the examples of, one example is of sequence, another example is of selection. Okay, now let's talk about the third concept today, that is selection repetition construct. Okay, let's be strict from next classes. If you do not join after 10, I will not allow. Okay, let's do this. Tanishka, you came late. From now onwards, I will not let you join those who are joining after 10 AM. Like 5 मिनट के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा. Okay, the next concept is repetition construct. Okay, I am giving this idea. I am asking a question before starting repetition construct. There is a program in which we have to do product of 2 numbers. Okay, and as we know, I need not to ask you that this program is of which construct. So I am writing the answer. This is a program of sequential construct. Alright, but if this repetition has to be done 10 times, okay, if this repetition is to be done 10 times, then the sequence has to be repeated. Since the sequence has to be repeated more than once, so that's why this construct will be called repetition construct. Okay, let's have a proper example of this. I have been asked to write a program to print table of a number. Okay, to print table of a number. Now if I have to print table of a number, what is to be done? I have to take number first from the user, and I have to multiply this number by numbers from 1 to 10. Since a process, that is multiplication, is being done repeatedly, then we call it repetition construct. ओके, तो रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट में क्या होता है बच्चों? किसी भी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है. तो इस आइडिया का, जहां पर भी हमें कोई भी चीज़ बार बार यूज़ करनी है, इसको हम रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट कहते हैं. कुछ पॉइंट में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर जब रिपीटेशन कंस्ट्रक्ट के प्रोग्राम कराऊंगा तो फिर से पढ़ाऊंगा. जब हम रिपीट करते हैं चीज़ों को, तो रिपीट करना 2 तरह से होता है. ओके, जैसे इफ आई हैव टू रिपीट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस टेबल वाला एग्जाम्पल, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 10 टाइम्स, राइट?
So whenever a repetition is done, repetition is normally done in two ways. One, when you know that how many times repetition will be done. So if I talk about repetition, so there are two types of repetitions: known repetitions, unknown repetitions. Okay, so there are two types of repetitions. Number one is known repetition and second is unknown repetitions. Now how can we define known repetition and what is unknown repetition? In known repetitions, we know that how many times repetition is to be done. ठीक है, इसमें हम ये जानते हैं कि रिपीटेशन कितनी बार होना है. ऑलराइट. अननोन रिपीटेशन में क्या होता है? ऑब्वियसली वी डू नॉट नो. हाउ मेनी टाइम्स repetitions are to be done, but we know when to stop. ओके, क्या बोला मैंने? यहाँ पे हमारे पास ये पता होता है कितनी बार करना है और यहाँ नहीं पता होता कितनी बार करना है, लेकिन इसके साथ ये ज़रूर पता होता है कि हमें रुकना कब है. कितनी बार चलना है ये नहीं मालूम है, रुकना कब है ये हमें पता होता है. इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए एक वॉल है हमारे पास. ओके, एक वॉल है. अब इस वॉल के एक तरफ कोई एक्स है और हम बोलते हैं एक्स को वॉक 10 steps towards wall. Okay, walk 10 steps towards wall. अभी ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसको बाद में डिस्कस करेंगे. वॉल के दूसरी तरफ वाई है, मिस्टर वाई खड़े हैं मान लीजिए, और इसको हम बोलते हैं वॉक अप टू द वॉल. राइट. तो हमारे पास एक है केस x, एक है केस y. ऑलराइट. Does x know that how many times he has to, like how many steps he has to take? Does x know that how many steps I have to take? Yes, he knows that I have to take 10 steps. Right? So can I say x is basically known repetition? Because he has to take the process, he has to repeat the process of taking step, and he knows that how many steps he has to take. Then case x will be called as known case. What about y? Unknown case. अब इसको कैसे बोल सकते हैं? x को पता है मुझे 10 स्टेप लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओवर. अभी y को ये नहीं पता कि मुझे कितने स्टेप लेने हैं, लेकिन उसे ये पता है कि जब भी वॉल आ जाएगी तब मुझे रुक जाना है. सो y डज नॉट नो दैट हाउ मेनी स्टेप्स ही हैज टू टेक, बट ही नोज जब वो वॉल के पास पहुंचेगा तो उसको रुक जाना है. ऑलराइट. तो जो केस y है हमारा, यहाँ पे हम ये नहीं जानते कि हमें कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जबकि केस x में हम ये जानते हैं कि हमें कितने स्टेप लेने हैं. तो यही अंतर होता है नोन और अननोन का. नोन में एक खास बात होती है कि नोन हमेशा काउंटिंग पे काम करता है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ गिनते हैं, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ अगर आपको कोई भी चीज़ नोन टाइम्स करनी है तो आप काउंटिंग करते हैं. जैसे मैं आपसे बोलता हूँ अपना नाम 10 बार बोलिए, तो आप दो प्रोसेस करेंगे. क्या? एक तो नाम बोलेंगे अपना और एक गिनते रहेंगे उसको. ऑलराइट. अननोन के केस में काउंटिंग नहीं होती, पर एक कंडीशन होती है कि जब यहाँ पे पहुँच जाओ तो बता देना. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया
एक रियल लाइफ टाइप का एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो और ज़्यादा क्लियर करेगा इस बात को। जैसे मान लीजिए मैं और मान लीजिए कुशाग्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैंने कुशाग्र से कहा, कुशाग्र मुझसे कोई भी 10 नंबर पूछो, कोई भी 10 नंबर पूछो, ठीक। तो कुशाग्र ने कहा ठीक है सर बताओ। तो मैंने पहला नंबर बताया, जो भी नंबर है, दूसरा तीसरा, इस तरह से मैंने नंबर बताया। कुशाग्र क्या करेगा, इसके 2 काम है। एक तो ये मुझसे नंबर सुनना है इसको जो मैं बता रहा हूँ, और दूसरा पूछना है कि सर नंबर बताइए। और ये पूछना कब तक है, जब तक इसकी काउंटिंग 10 नहीं हो जाती, क्योंकि इसको पता है कि मुझे 10 नंबर पूछने हैं। ऑलराइट, अब मेरा टर्न आया। तो मैंने कहा कुशाग्र अब करना ये है कि तुम मुझसे नंबर पूछो और तब तक पूछते रहना जब तक मैं 0 ना दे दूं। राइट, पहले में कुशाग्र ने मुझसे पूछे 10 नंबर, तो मैंने 10 नंबर बताए, उसने गिन के हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। दूसरे में मैंने कुशाग्र को बोला कि भाई यू कीप ऑन आस्किंग नंबर फ्रॉम मी अंटिल आई प्रोवाइड यू अ 0। सो ही हैज स्टार्टेड आस्किंग नंबर्स। सो कैन एनीवन प्रेडिक्ट दैट हाउ मेनी नंबर्स ही हैज आस्क्ड फ्रॉम मी? कैन एनीवन प्रेडिक्ट कि उसको कितने नंबर पूछने पड़े मुझसे? अननोन है, पता नहीं मैं कितनी देर बाद 0 बोलूँगा। हो सकता है पहले ही 0 बोल दूँ, हो सकता है 50 के बाद बोलूँ। अननोन रिपीटेशंस। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से आइडिया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि नोन रिपीटेशंस क्या होते हैं और अननोन रिपीटेशंस क्या होते हैं। राइट, चलिए, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने अपने तीनों तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग क्या होती है, सिलेक्शन क्या होता है, रिपीटेशन क्या होता है। ओके, इन्हीं को यूज़ करके हम अपने कोडिंग करते हैं। तो जब हम कोडिंग करते हैं बच्चों, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें एल्गोरिथम बनाना पड़ता है। ठीक है, एल्गोरिथम। तो यहाँ 2 टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम। ओके, प्रोग्रामिंग में खास बात क्या होती है, दैट प्रोग्रामिंग इज डन विद अ लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग जो होती है वो किसके साथ होती है? लैंग्वेज के साथ होती है। चाहे पाइथन हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे कोई भी XYZ लैंग्वेज हो। एंड एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम विदाउट लैंग्वेज होता है। इसमें कोई लैंग्वेज यूज नहीं की जाती। लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, दोनों में एल्गोरिथम होता है। प्रोग्राम में भी एल्गोरिथम होता है और एल्गोरिथम तो खैर खुद है ही। तो हमें सबसे पहले जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें एल्गोरिथम सोचना पड़ता है। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पाइथन पढ़ाऊंगा। ठीक है, पाइथन तुम्हारी लैंग्वेज है, तो पाइथन की जो ग्रामर है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे इंग्लिश की जो ग्रामर होती है, वैसे पाइथन की जो ग्रामर है, दैट आई विल टेल यू। एल्गोरिथम कैसे डेवलप करते हैं ये मैं बता दूंगा थोड़ा सा। ऑलराइट, पर ये काम है जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ये तो इजीली आ जाता है। जैसे इंग्लिश पढ़ाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उससे थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ती है पाइथन पढ़ाने में। लेकिन एल्गोरिथम कब किसको लिखना है, कब किसको नहीं लिखना, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। ये चीज़ पढ़ाई नहीं जा सकती। तो अगर पढ़ाई भी जाएगी तो आपको खुद से अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने होते हैं इसमें। अब जब हम एल्गो को रिप्रेजेंट करते हैं तो एल्गो को रिप्रेजेंट करने के भी तरीके होते हैं। इसको 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तरीका होता है फ्लो चार्ट्स और एक तरीका होता है स्यूडो कोड। ठीक है, एक तरीका वो फ्लो चार्ट एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करने के, ये कॉपी में ही बनाए जाते हैं, कंप्यूटर पे नहीं बनाए जाते हैं। तो एक तो फ्लो चार्ट होता है इसका तरीका, और एक होता है स्यूडो कोड। अगर किसी एल्गोरिथम को हम पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल वे में, with the help of some symbols, shapes and diagram, तो हम उसको क्या बोलते हैं? We call it flowcharts. ओके, और अगर एल्गोरिथम को हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो कोड बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है।
तो मैं एक छोटा सा एल्गोरिथम आपके लिए लिख रहा हूँ, सूडो कोड की हेल्प से भी और फ्लो चार्ट की हेल्प से भी। आपसे बोला गया क्रिएट एल्गोरिथम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। एक सिंपल एल्गोरिथम, यहाँ पे पाइथन शुरू नहीं हुई है हमारी, हम सिंपल एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ सूडो कोड। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखना है, कोई रूल्स नहीं है, बस ग्रामर मत डाल देना, ही इज़ वर्किंग, ही इज़ रनिंग, ये नहीं डालना है, बट इंग्लिश में लिखना है जैसे आप नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगर हमें दो नंबर्स का सम करना है तो सबसे पहले हमारे पास पहला नंबर होना चाहिए, तो हमने उसको कहा इनपुट ए। ये जो इनपुट ए है ये इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को आपको बताना है कि उसको इनपुट लेना है। जब हम इनपुट ए की बात करते हैं, दैट मीन्स दिस इंस्ट्रक्शन हैज बीन गिवन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सपोज टू टेक इनपुट। ओके, कंप्यूटर इज सपोज टू टेक इनपुट। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इनपुट बी, second number. Then next instruction is calculate C is equal to A plus B. And next instruction is print C. Okay? अब इसमें कुछ वेरिएशंस करते हैं। एक्चुअली इनपुट लिख रहे हैं तो मैं इसको प्रिंट नहीं करता, ये हमारा अपना एक सेंस होता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं क्या नहीं लिखना चाहते। तो मैं इसको बोलता हूँ आउटपुट सी। ठीक है ना, थोड़ा सा मैच हो गया इनपुट और आउटपुट। एक तरीका ये हुआ, राइट। एक तरीका क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट ए एक्सेप्ट बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, डू नॉट राइट कैलकुलेट। देन यू कैन से डिस्प्ले सी। ऑलराइट, सो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। दोनों में दोनों ठीक हैं, जो आपको पसंद है वो तरीका आप ले सकते हैं। अब इसी को एक चीज़ मैंने छोड़ दी, जब भी कोई प्रोसेस शुरू होती है बच्चों, उससे पहले आपको स्टार्ट लिखना पड़ता है, और जब भी कोई प्रोसेस खत्म होती है उसके बाद आपको एंड या स्टॉप लिखना होता है। ठीक है, स्टार्ट एंड, या फिर आप लिख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप, जो भी आपको ठीक लगे। अब इसी को अगर हम फ्लो चार्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? फ्लो चार्ट में सिंबल्स यूज किए जाते हैं। जैसे किसी भी प्रोसेस को यूज करने के लिए जो सिंबल है बच्चों, वो टर्मिनल है। ये सिर्फ पहले और आखिरी एग्जाम्पल्स हैं जो हम करेंगे, इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स को नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा एल्गोरिथम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो सिंबल यूज किया जाता है किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, इसका नाम होता है टर्मिनल। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं स्टार्ट। इसके बाद हम फ्लो लाइंस को डिनोट करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, इनको बोला जाता है फ्लो लाइंस। सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं इसका। इसके बाद अगर आपको कोई भी इनपुट करना है बच्चों, तो आपको पैरेललोग्राम यूज करना पड़ता है, इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए। तो हमने यहां लिखा इनपुट ए। ठीक है, फिर से एक प्रोसेस बना लो। चाहे तो हम इन दोनों को एक ही बॉक्स में भी डाल सकते थे, या फिर दो अलग अलग बॉक्स ले सकते थे। फिर हमने लिखा इनपुट बी। अब हमारा काम है इनको जोड़ने का। प्रोसेसिंग करने के लिए जो बॉक्स यूज किया जाता है फ्लो चार्ट में, वो रेक्टेंगल होता है। तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू A प्लस बी। हाँ जी, okay, so start input A, input B, C is equal to A plus B. Now next process is to display C, so we'll make again a parallelogram. We'll say output C, and finally when the process will be over, we'll make a terminal saying stop. Right? So this is a flow chart. Mathur, I'm recording the video, I'll share the video. So if you want to see this again, you just have to write the sequence, like how many sequences do we have? Start, input, input, calculate, display and stop.
1 2 3 4 5 6, तो ये बॉक्सेस हटा के अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ तो ये सूडो कोड बन जाता है. ठीक है, इट्स नथिंग वेरी क्रूशियल, बट ये कि एक बेसिक आइडिया है. आप जिसको जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे लिख सकते हैं. जैसे आपने चाय बनाने की प्रोसेस को अपनी तरह से लिख सकते हैं ना आप लोग, वैसे ही यहाँ पे भी है कि आपको सिर्फ अपने स्टेप्स डिफाइन करने हैं सो दैट यू कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस. क्योंकि ये सिस्टमेटिक होना ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी इन दिस मैनर ओनली, इसको ऐसे ही होना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी. ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं. यहाँ तक हमारा बच्चों बेसिक ख़त्म हो जाता है. हमने एल्गोरिथम पढ़ लिए और प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट पढ़ लिए. अब हमारा पाइथन शुरू होता है इसके बाद. ठीक है, यहाँ से हम अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे. एक बात बताओ जरा, अगर हमें इंग्लिश पढ़नी है तो हम क्या चीज़ है जो सबसे पहले पढ़ते हैं? यू कैन स्पीक इंग्लिश. अल्फ़ाबेट, राइट. ओके, उसके बाद क्या पढ़ते हैं बच्चों? वर्ड्स. ऑलराइट, उसके बाद मेरे ख्याल से सेंटेंसेस. उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं. ठीक है, पैराग्राफ या कोई भी चैप्टर बोल दीजिए, चलिए पैराग्राफ बोल देते हैं. और उसके बाद एक स्टेज आती है कि आप इंग्लिश में परफेक्ट हो जाते हैं. आप चाहे एस्से लिखिए, चाहे एप्लीकेशन लिखिए, चाहे कुछ भी लिखिए. ऑलराइट, जब हम पाइथन पढ़ते हैं तो अल्फ़ाबेट को कहा जाता है कैरेक्टर सेट. वर्ड्स को कहा जाता है स्टेटमेंट या कमांड्स. एक मिनट, कुछ गलत लिख दिया मैंने. वर्ड्स को कहा जाता है टोकन्स. स्टेटमेंट्स कहा जाता है सेंटेंसेस को, और पैराग्राफ का मतलब प्रोग्राम. अब पैराग्राफ के बाद जो तुम्हारे पास आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी लेटर भी लिख सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं, या जो भी लिखना चाहें. तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो सीक्वेंस आती है वो आती है सॉफ्टवेयर. हम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, हम एक कंप्लीट ब्लॉग बना सकते हैं, हम एक कंप्लीट गेम बना सकते हैं. इसके बाद सारी चीज़ें हैं हमारे पास. जैसे इतनी के बाद, इंग्लिश के बाद आपके पास सारा कुछ लिखने को आ जाता है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो ऐसे ही इतना सीखने के बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम कुछ भी बना सकते हैं. ऑलराइट, अब क्या हर इंग्लिश सीखने वाला बुक लिखता है? नहीं, जिसको इंटरेस्ट होता है वही लिखता है. राइट, ऐसा ही यहाँ पे भी है. अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आप इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कैपेबल हैं. राइट, लेकिन आप बनाते हैं या नहीं बनाते ये आप ही पे डिपेंड करता है. चलिए आज यहाँ तक ही रखते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क.